First of all, hello everyone. Thank you for clicking on this video and going through the entire syllabus for CB grade examination for economic subjects. On your screen, you can see the syllabus is divided into three parts: Part A, Part B, and Part C. We are going to cover Part A now, which is the easiest of all your syllabus. I can assure you that after covering all these lectures, you will be 100% confident and you will be far ahead of the people appearing for phase 2 examination. सो स्टार्ट करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई एक बार आप पूरा एक बार सिलेबस देख लीजिए। 18 चैप्टर्स हैं, ये सभी आपको करने हैं। सबका वेटेज बराबर नहीं है। जैसे ISLM का है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लोगों को लगता है, बट वी विल गोइंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपको इसी इकोनॉमिक सब्जेक्ट में ही अपना सारा समय वेस्ट नहीं करना है। बाकी आपके 8 सब्जेक्ट्स और हैं, उनको भी कवर करते रहना है। सो इसको बहुत फास्ट पेज से करते हैं। सो पहला है टॉपिक 1, डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड एंड सप्लाई इज द ईजीएस्ट चैप्टर। सो डिमांड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो आपको खरीदने का मन है और आपकी हैसियत भी है खरीदने की, और वो चीज़ अवेलेबल भी है मार्केट में बिकने के लिए। सो उसी पे आप डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपको कल को ताजमहल लेना है कि आपकी डिमांड है। दिस इज़ नॉट कम्स अंडर डिमांड कॉन्सेप्ट, इट्स comes under desire concept. So desire is not demand, demand is entirely different. So demand is the quantity of goods that a consumer are willing to and able, both willingness and ability to buy at a given price during a given period. Ceteris paribus means other thing remain the constant, because other thing may influence this demand, like your preference, your income level, and your market conditions. All these things might influence your demand. That's why we are when we are reading about demand theory, we are considering other things are constant and not influencing our demand. So exam focus is that mere demand, mere desire is not demand, because desire anything you can desire of, but demand is only when you have capacity to buy that particular thing. Also you are willing to buy, to pay the price which is there in the market currently. So purchasing power plus willingness both are essential for constituting a demand. So law of demand says other thing remaining constant, which is ceteris paribus. तो उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा. ओनली 2 फैक्टर्स, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, दीज 2 फैक्टर प्ले to derive our law of demand. So price and quantity demanded are inversely related. So when price increases, the quantity demand automatically decreases. Okay, and when the price decreases, so quantity demand slightly increases, which we will see the on the basis of elasticity concept, which is coming down. So why does law of demand operates? Actually demand operate ही क्यों करता है? इसके 3 रीज़न है. एक तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, कंज्यूमर सब्सटीट्यूट चीपर गुड्स, और मार्केट में 2 टाइप के गुड्स है अवेलेबल है. तो obviously if their utility is somewhat similar, you will prefer the cheaper one, like product 1, product 2. अब ये अगर 10 रुपये का बिक रहा है, ये मार्केट में 12 का बिक रहा है, और इनकी यूटिलिटी समवट सिमिलर है, तो यू विल प्रेफर दिस वन. सो दिस सेज कि अगर पहले ये खरीदे थे, मार्केट में नया आ गया, तो ऑब्वियसली यू विल शिफ्ट टू दिस. तो दिस का सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. द इनकम इफेक्ट सेज कि अगर आपकी इनकम 100 रुपये है, ठीक है, अभी आपका मतलब सारे खर्चे जो करने के बाद ये मान लो 10 रुपये की चीज़ है, इसको मान लो असेंशियल आइटम पेन है, तो 10 रुपये का मिलता है आपको. मंथली आपको 100 रुपीज़ पॉकेट मनी मिल रही है, तो आपको मान लो 5 पेन यूज़ कर लेते हो आप, तो 50 रुपीज़ पर मंथ इज़ योर एक्सपेंस, आउट ऑफ अब आपके 50 रुपये नेट बचता है सारा एक्सपेंस करने के बाद. तो अगर ये 10 रुपये का पेन फ्यूचर में 5 रुपये का हो जाए, तो आपकी डिमांड तो कितने पेन की थी? 5 पेन की, तो 25 रुपीज़ खर्चा हो जाएगा आपका, राइट. तो अब 100 रुपये में से 25 आपने पेन में खर्च कर दिया, 75 रुपीज़ आपका नेट बचेगा, तो आपकी रियल इनकम विल राइज. ठीक है, ये जो पहले 50 थी, नाउ इट्स 75. ये ऑटोमेटिकली इनकम तो बढ़ी नहीं, ये बढ़ी बिकॉज आपकी प्राइस जो आप पहले थी वो डाउन हो गई, प्राइस कम हो गई, दैट्स व्हाई योर इनकम ऑटोमेटिकली गॉट इंक्रीज्ड. और अब इसके बाद में बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि मान लो आप कंज्यूम करते हो कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी, एज यू गो ऑन कीप ऑन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी इनटेक, सो योर सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग. इसको आप गोलगप्पे के कॉन्सेप्ट से ही समझ लो. जैसे आप एक गोलगप्पा खाते हो, तो ये गोलगप्पा, पहला गोलगप्पा खाओगे बहुत मज़ा आएगा, दूसरा खाओगे थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आएगा. तो ये ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनता है कि पहला खाओगे और मज़ा आएगा, दूसरा खाओगे और मज़ा आएगा, तीसरा खाओगे तो मतलब एकदम सही हो जाएगा. 3 प्लेट खाने के बाद सबसे हाईएस्ट आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा. उसके बाद चौथा 5वें में आपको है ना इतना सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, बल्कि डिससेटिस्फैक्शन होने लग जाएगा. तो ये आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है. तो इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं कि एक क्वांटिटी कंजम्पशन आप इंक्रीज़ करते जाओगे, तो एक लेवल आने के बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देगा. सो ये मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे डिराइव होता है. तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. ये रिवीजन कॉन्सेप्ट ही हो रहा है. सो लेट्स मूव. ठीक है, तो अब इसके बाद है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. सो गिवन गुड्स होते हैं और प्रेवलेंट गुड्स होते हैं. तो गिवन गुड्स कौन से होते हैं? जो मतलब जो गरीब लोग होते हैं ना, वो उनके लिए दिस आर नॉट सब्सटीट्यूटेबल, दे हैव टू कंज्यूम ऑल दीज गुड्स.
तो मतलब अगर मान लो उनकी इनकम कम है, कोई 1 लाख रुपये साल के महीने के कमा रहे हैं, कोई मान लो 5,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 1 लाख वाला तो है ना 100 रुपये किलो का गुड़ वो अनाज भी खा जाएगा। बट यहाँ जो 5,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं वो फैमिली इनकम है, तो उनको मतलब थोड़ा सा सस्ती क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सस्टेन द एंटायर मंथ। तो ये जो बंदा 100 रुपये किलो खा रहा है, तो ये 10 रुपये किलो ही खाएंगे अनाज वीट। सो ये वाली क्वांटिटी है, ये क्वालिटी ऑफ वीट है ना, ये इन्फीरियर गुड्स हैं इन रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये बंदे तो ये खा लेंगे, इसको क्या बोलते हैं होल ग्रेन, और ये होते हैं मतलब डिफेक्टिव ग्रेन बोल दो इसको। जो 1 लाख वाला कभी भी ये कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इनकम इतनी है कि ही कैन अफोर्ड इजीली द होल ग्रेन्स। अब वेयर इज दैट 5,000 रुपीज़ जो कमा रहा है उसको डिफेक्टिव ग्रेन्स पे अपना गुजारा करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी इनकम कम है। तो ये क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड में ये काउंट नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शन है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो? मान लो 10 रुपये किलो ये बिक रहा है, अब मान लो ये 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये किलो हो गई, तो ये कंजम्पशन तो उतना ही करेगा। समझ रहे हो कि मतलब 10 ये पहले ही बेयर मिनिमम कर रहा था कंज्यूम। अब ऐसा तो है नहीं 20 रुपये किलो हो गया कि तो खाना ही बंद कर देगा। ये तो पहले ही इन्फीरियर गुड्स हैं जो बेयर सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसिटी है, तो ये 20 रुपये किलो में भी खरीदेगा ये अनाज। तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड उतनी डाउन नहीं हो पाएगी जितनी लॉ ऑफ डिमांड कहता है, ठीक है। फिर वेबलेंट गुड्स होते हैं जो कॉन्स्पिक्वस कंजप्शन के लिए यूज़ होते हैं। कॉन्स्पिक्वस कंजप्शन होता है जिसमें होता है दिखावे की दुनिया टाइप होता है ना, कि यू हैव टू शो ऑफ इन द सोसाइटी, यू हैव टू एस्टेब्लिश योर अचीवमेंट्स, राइट, लाइक गोल्ड हो गया, एक्सपेंसिव कार्स एट्सेट्रा, ज्वेलरी। तो इनकी प्राइस ऊपर होती है ना, तभी क्वांटिटी ऊपर होती है। तो ये हो गया वेबलेंट गुड्स। तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड्स होती है, मान लो अनियन आज मिल रहा है 10 रुपये किलो, और अभी लोगों का ये रुझान है कि आने वाले टाइम में बारिश होने से या फिर किसी भी फसल खराब होने से इसकी सप्लाई आगे कम होने वाली है, तो ये 20 रुपये किलो हो जाने वाला है आने वाले अगले महीने में, ठीक है। तो मान लो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, 10 से 11 हो गया, 10 से 12 हो गया मान लो, तो इसके बाद इसकी डिमांड और बढ़ जाएगी कि लोगों को लग रहा है आगे तो 20 होने वाला है, तो 12 पे तो और खरीद लो, ठीक है। तो इसकी प्राइस इंक्रीज़ होने के बाद भी क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इंक्रीजिंग, बिकॉज फ्यूचर में उसके प्राइस इंक्रीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड। अब नेसेसरी शॉर्ट टर्म में होती है, मतलब आपको इस टाइम अगर ये चाहिए ही कोई डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी चीज़ आइटम अगर आपको शॉर्ट टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो हो सकता है कि उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होकर नीचे भी आ जाए ऊपर भी आ जाए, तो शॉर्ट टर्म में इफ़ इट्स रिक्वायर्ड देन नो मैटर व्हाट इट्स प्राइस इज़ एंड नो मैटर व्हाट इट्स प्राइस विल बी, इट विल बी डिमांडेड, राइट। सो शॉर्ट टर्म में भी इसलिए डिमांड लॉ ऑफ डिमांड इसमें भी अप्लाई नहीं होता है। तो अब डिमांड कर्व के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है, दो टाइप के मूवमेंट मतलब ग्राफ्स होते हैं। एक तो होता है मूवमेंट डिमांड कर्व हमेशा अपर स्लोपिंग लोअर स्लोपिंग होता है, सॉरी, ये आपकी प्राइस होती है, ये क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस नीचे गिरेगी आपकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है, जो लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इसमें होता है दो टाइप के, एक तो होता है मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, मतलब इसी के ऊपर चलती रहेगी डिमांड, ठीक है। और एक दूसरा होता है शिफ्टिंग डिमांड कर्व, जिसमें आपका डिमांड कर्व भी एंटायरली शिफ्ट हो जाता है, इधर राइट और लेफ्ट। जैसे राइट साइड में शिफ्ट हो गया, एक सेकेंड, जैसे राइट साइड में शिफ्ट हो गया, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। अब ये क्यों होता है इसको अपन समझ लेते हैं, ठीक है। पहले होता है इसे मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, इसके अलॉन्ग क्यों करेगा? मान लो पहले यहाँ था, अब ये यहाँ आएगा, क्यों आएगा? दो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इसको, एक तो ये कर रहा है, ठीक है, ये दोनों थे तब ये यहाँ था, अब ये दोनों हैं तो ये यहाँ है। तो इसका मतलब एक तो प्राइस इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक क्वांटिटी डिमांडेड इन्फ्लुएंस कर रही है। इन दोनों की इन्फ्लुएंस की वजह से ही मूवमेंट होता है डिमांड कर्व के अंदर, इधर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब ये हो सकता है या तो प्राइस चेंज हो जाए या डिमांड चेंज हो जाए। डिमांड आपकी बढ़ सकती है, घट सकती है, प्राइस बढ़ सकती है, घट सकती है। इन दोनों का इन्फ्लुएंस क्या होता है? प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है? डिमांड घटती है, और प्राइस डिक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व, अब शिफ्ट का मैंने जो बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको समझ लेते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। अब शिफ्ट अपने शिफ्ट समझ रहे हैं, ये डिमांड कर्व है ओरिजिनल वाला, जब प्राइस ये थी, डिमांड ये थी, क्वांटिटी डिमांड नहीं क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो उसके बाद अब वो सेक्टर्स पेरिबस कॉन्सेप्ट इधर एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ प्राइस और डिमांड इन दोनों के इन्फ्लुएंस से ना होकर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड आपकी चेंज हो रही है,
अदर फैक्टर्स क्या क्या हैं वो इधर मेंशन है, ये हैं अदर फैक्टर्स। इनकम, आपकी इनकम से इन्फ्लुएंस हो जाए। टेस्ट प्रेफरेंस, अभी आपको मान लो फैशन चल रहा है हाई हील्स का या फिर मतलब कट सूट, कोई किसी भी चीज़ का फैशन चल रहा है, तो वो फैशन अगर है तब ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इससे प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। इनकम आपकी बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, इससे प्राइस का कुछ है लेना देना नहीं है। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है कि मान लो दो गुड्स हैं, जैसे रिलेटेड गुड्स में भी दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक तो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं जैसे पेप्सी और कोका कोला, ठीक है। ये दोनों अगर आप पेप्सी लेते हो कोका कोला तो सेटिस्फेक्शन आपकी समवॉट सिमिलर रहती है, ठीक है, कंज्यूम करने के बाद। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो मतलब दोनों ही चाहिए होते हैं, जैसे अगर आप चाय बना रहे हो तो शुगर चाहिए आपको, टी के साथ शुगर, तो ये ले रहे हो तो इसके साथ ये ऑटोमेटिकली कंज्यूम होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये आपका टी कॉफ़ी भी कर सकते हो, बट सबके लिए तो ये होता नहीं है ना टी कॉफ़ी। तो मैं ये कह रहा था सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये आपके रिलेटेड गुड्स हैं। तो ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे इन्फ्लुएंस करती है डिमांड कर को, ये देख लो, ठीक है, ये समझा रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे ये अभी हम बात कर रहे हैं कॉफ़ी पीस की, टी का ये डिमांड कर्व था, 10 रुपये की टी मिल रही थी, तब क्वांटिटी डिमांडेड थी मान लो 2 कप चाय। तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं, 2 कप चाय थी, अब टी का प्राइस बढ़ गया, ये हो गया 15 रुपये, तो अब 1 कप चाय पियेंगे। शुगर का डिमांड कर, ये पहले इतना था, जब लोग 2 कप चाय पी रहे थे तो मान लो ये शुगर मिल रही थी 10 रुपये, मान लो इसको, तो शुगर मिल रही थी कितने की, आप दो चम्मच शुगर ले रहे थे, क्योंकि 2 कप चाय में 2 चम्मच शुगर डाल रहे थे। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इसकी टी की डिमांड कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली शुगर कंजम्पशन भी आपका लोगों का कम होगा। अब 1 ही चम्मच चाहिए आपको तो 1 चम्मच हो जाएगा, बल्कि इसकी प्राइस कितनी है, इसकी बढ़ेगी कम होगी, इसकी उतनी रहेगी भाई प्राइस। यही तो इसका एक्सेप्शन है, 10 रुपये शुगर की प्राइस के बावजूद इसकी डिमांड कम हो गई। क्यों हुई कम? बिकॉज चाय की रेट बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, राइट। चाय की प्राइस बढ़ने से चाय की कंजम्पशन कम हुआ, और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शुगर है तो ऑटोमेटिकली शुगर की डिमांड भी कम हो जाएगी उसी रेट पे, उसी प्राइस पे शुगर की, राइट। अब हम उसको जल्दी से समझ लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। एग्जाम्पल ये रखो, मान लो टी पहले मिल रही थी, अब यहाँ कॉफ़ी का चार्ट ले लो। एग्जाम्पल यार थोड़ा सा सफाई करो ना यार, आपको दिखेगा नहीं, 1 सेकेंड। टी कॉफ़ी, अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। टी मिल रही थी 10 रुपये की, अब टी की रेट बढ़ गई 15। कॉफ़ी तो पहले ही 12 की मिल रही थी, अभी भी 12 की मिल रही है। अब पहले टी लोग लेते थे 2 कप, अभी 15 बढ़ गई, इसकी रेट बढ़ गई तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो लोग 1 लेंगे। और ये पहले लोग 1 ले रहे थे तो अभी इसको 2 कर देंगे, शिफ्ट हो जाएंगे ना इसके ऊपर, राइट। यही है आपका सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इन रिलेटेड गुड्स। तो इसको ग्राफ पे देख लेते हैं। टी की प्राइस पहले 10 रुपये थी तो लोग इसको 2 कप लेते थे, अब इसकी 15 रुपये हो गई, प्राइस बढ़ गई तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी तो लोग अब 1 कप लेंगे। इसकी वजह से कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी का पहले ही रेट 12 रुपये था तो लोग 1 कप लेते थे, अब क्योंकि टी की रेट बढ़ गई है तो लोग इसकी क्वांटिटी कम कर देंगे, बाकी एक क्वांटिटी वो यहाँ से कंज्यूम करेंगे, तो यहाँ से 1 कप की जगह 2 कप हो जाएगा, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी किस रेट पे, 12 रुपये पे। 12 रुपये पे क्यों? क्योंकि इस पर तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, राइट। तो ये होते हैं रिलेटेड गुड्स। अब उसके बाद पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट भी बहुत ढंग का कॉन्सेप्ट है यार, 1 सेकेंड। पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली कलेक्टिव डिमांड विल इंक्रीज। मान लो एक फैक्ट्री है, ये एक पूरी पॉपुलेशन है, यहाँ 1 लाख लोग रहते हैं, तो ये कितना 100 गुड्स बना रहे हैं मान लो,
तो 100 लोग 1 लाख लोग 100 डिमांड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ मान लो 20 लाख हो गए पॉपुलेशन, तो लोग बोलेंगे भाई 200 तो दो यार, हम सेटिस्फाई कैसे करेंगे हमारी डिमांड को, तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। प्राइस तो मान लो इनका 1 रुपये था, अभी भी तो 1 रुपये रहेगा, राइट। तो पहले डिमांड ऐसी थी, 1 रुपये की चीज़ है, 100 ले रहे हैं लोग, अब लोग बढ़ गए तो अब 200 डिमांड करेंगे ना 1 रुपये भी। ये है शिफ्ट, राइट शिफ्ट हो जाएगा। पॉपुलेशन कम हो गई, मान लो अटैक वटैक हो गया तो ये कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन, ये तो मैंने पहले अनियन वाले एग्जांपल से समझा दिया था आपको कि मान लो अभी तो 10 रुपये का बिक रहा है, लोगों को लग रहा है आने वाले टाइम में 50 रुपये किलो हो जाएगा, और ये धीरे धीरे रेट बढ़ रही है, 15 हो गई, 20 हो गई, तो लोग 20 में भी खरीदेंगे इसको कि भाई 20 में स्टॉक कर लेते हैं, बाद में 50 में तो और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो और तो ये मतलब ये रिवर्स में ही फॉलो करता है। जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड तो डिक्रीज़ होनी चाहिए, डिमांड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, बट प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये हो गया एक्सेप्शन। तो इसमें ये डिमांड कर्व में शिफ्ट हो जाएगा। मान लो 10 रुपये का था अनियन, 10 रुपये का अनियन था, तो ये लोग 10 किलो खरीद रहे थे, अब उनको लग रहा है यार 50 किलो होने वाला है, 10 रुपये में ज़्यादा खरीद लो यार, तो 10 रुपये में डिमांड बढ़ के हो जाएगी 30 किलो 40 किलो जितना स्टोर करें हम, तो ये शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड। अब होता है इलास्टिसिटी, मतलब कितनी लचीली डिमांड है। डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि प्राइस चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है, कि ये मान लो इतनी सी इंक्रीज़ हुई तो आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, या फिर इतनी इंक्रीज़ होने पे क्वांटिटी आपकी इतनी सी डिमांडेड होती है। ये चीज़ें इलास्टिसिटी से पता चलती है, ठीक है। अब करते हैं अपन कवर। इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। इसका होता है चेंज इन प्राइस टू चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी दोबारा बताता हूँ यार। इसका कॉन्सेप्ट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। मान लो पहले क्वांटिटी 1 हो गई, यहाँ ये देखो टेबल, प्राइस क्वांटिटी P0 से P1 हुई, तो क्वांटिटी Q1 से Q0 हुई, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ ये कम हुई, ये ज़्यादा हुई, ऐसे एग्जाम्पल खुद से ले लो ना यार। 10 रुपये थे, अब उसके 15 रुपये हो गई प्राइस, तो क्वांटिटी मान लो पहले 100 थी, तो अभी कितना कम कर देगा ना, इसको 80 कर देगा मान लो, तो ये कितना परसेंट इसमें चेंज आया, ये तो 50% इंक्रीज़ हो गया, ये 20% डाउन हुआ ना। तो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन 50% इंक्रीज इन प्राइस देयर इज 20% रिडक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका 2/5 कितना होता है भाई, 0.4, तो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.4, तो 0.4 इज इक्वल टू इन इलास्टिक, ठीक है। अब इन इलास्टिक वगैरह इनका कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं आपको। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब झुकेगा नहीं साला, चाहे कुछ भी रेट वेट हो, अपने सेम डिमांड चलती रहेगी, प्राइस इतनी है डिमांड इतनी है, ये होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। पीरियड इज इक्वल टू 0, यहाँ प्राइस 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, इन्फिनिटी हो, डिमांड आपकी वही रहेगी, चाहे मान लो 100 रुपया, ठीक है। ये असेंशियल्स में लागू होता है, जैसे मान लो शुगर हो गई आपकी, सॉल्ट हो गया, इसकी इनइलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि यार ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, सॉल्ट तो आप हर चीज़ में यूज़ आता है, तो ये तो यूज़ होएगा ही हमेशा। फिर उसके बाद है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का कर्व क्या होता है, ये यूनिटरी इलास्टिक का बनाए थे, 45 डिग्री लाइन होती है, मतलब 50% चेंज इन दिस विल बी 50% चेंज इन क्वांटिटी, इन प्राइस विल इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी डिमांडेड बाय 50% ओनली। जितना परसेंट चेंज प्राइस में होगा उतना ही परसेंट चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में होगा, तो ये यूनिटरी इलास्टिक होता है। फिर होता है इलास्टिक, इसका होता है फ्लैटर कर्व, थोड़ा तो ऐसे बनाओ यार, ये होता है ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा चेंज इन प्राइस विल लीड टू अ हाई अमाउंट इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इतना सा चेंज इतना ज़्यादा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में हो गया, ये इलास्टिक है। ये इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। अब बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक,
ये तो आपको मैंने पहले बता दिया था ना, परफेक्टली इलास्टिक मतलब प्राइस चाहे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो, इतना इतना डिमांड इन्फिनिटी हो जाएगी। अब क्या इन इलास्टिक रह गया था, ये इन इलास्टिक का कर्व है, थोड़ा ये फ्लैट होता है, थोड़ा स्टीप होता है, सॉरी। मान लो इतना ज़्यादा चेंज हुआ रिडक्शन इन प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज बाय दिस मच ओनली। So change in price will have less amount of impact on the quantity demanded. This is inelastic demand. इनकम इलास्टिसिटी देख लेते हैं, और ये रिवेन्यू रिलेशन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। टोटल रिवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस डिमांड इंटू क्वांटिटी। ओके, मैं मिटा के समझाता हूँ, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है यार। टोटल रिवेन्यू क्या होता है? टोटल रिवेन्यू इज प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो इसका एग्जांपल लेते हैं ना, 10 रुपये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, ये थी 100। अब प्राइस चेंज होके कितनी हो गई? मान लो हो गई 15, ये 80 हो गया। अब इसका आप वो निकालो टोटल रिवेन्यू, ये कितना हो गया? 1000। ये कितना हुआ? 800 और 400 1200, ठीक है। अब इलास्टिक डिमांड में होता है, इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज होगी तो डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इन इलास्टिक, ये इलास्टिक का है, इन इलास्टिक का क्या है? प्राइस इंक्रीज होएगी, डिमांड इतनी सी इंक्रीज होएगी, ठीक है। अब मान लो ये अपने ऊपर वाला एग्जांपल लिया था, ये तो क्या था? यहाँ तो साफ साफ ही पता चल रहा है ना, 50% रिडक्शन हुआ, इंक्रीज़ हुआ प्राइस में, तो कितना? 20% रिडक्शन हुआ। इसका मतलब इन इलास्टिक में क्या होता है? आपका 1000 था, ये 1200 है, तो टोटल रिवेन्यू इंक्रीज़ होगा जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होगी, ठीक है। 1000 से 1200 हो गया ना, टोटल रिवेन्यू इंक्रीज़ हो गया जब 10 से 15 हुई, जबकि अपनी ये इन इलास्टिक डिमांड थी। अब इसी को अपन इलास्टिक करके फिर देखते हैं, नीचे कर दूँ आपके लिए, एक सेकेंड। प्राइस, क्वांटिटी और ये टोटल रिवेन्यू। प्राइस 10 रुपये था, अब इसको हमने मान लो 12 करते हैं, और ये 100 रुपये था, और इसको कर देते हैं 60। तो कितना? 20% इंक्रीज होने पे 40% डिमांड डिक्रीज हो गई, राइट। तो ये आपका इलास्टिक है। टोटल रिवेन्यू पहले 1000, अब कितना हुआ? 720। तो टोटल रिवेन्यू डिक्रीज हो गया, राइट। इसमें ये गलत दिख रखा है भाई, मतलब इन प्राइस डिक्रीज का लिख रखा है ना। हाँ, मैंने आपको इंक्रीज़ का बता दिया दोनों में, तो आप ये डिक्रीज़ का देख लेना, वो भी एक ही बात है। इसमें मान लो 12 रुपये से उल्टा देख लो, पहले 12 था, अब उसको हम प्राइस कम हो गई, 10 रुपये हो गई, तो पहले 720 रुपये टोटल रिवेन्यू रहा था, अब 1000 बढ़ गया रिवेन्यू। तो इलास्टिक में अगर इलास्टिक डिमांड कर्व है तो रिवेन्यू विल इंक्रीज विल रिडक्शन इन प्राइस। इलास्टिक में विद रिडक्शन इन प्राइस टोटल रिवेन्यू विल इंक्रीज। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, राइट। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अब इनकम इलास्टिसिटी देख लेते हैं। नॉर्मल गुड्स पॉजिटिव, इंफीरियर गुड्स नेगेटिव, नेसेसिटी इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1, लग्जरीज इनकम इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। इनकम इलास्टिसिटी तो आप जानते हो यार, मतलब आपके इनकम का मतलब जो क्वांटिटी है उसका आपका इनकम से क्या रिलेशन है। आपका इनकम तो 100 रुपये है, नॉर्मल गुड्स है, तो आपकी इनकम मान लो 200 रुपये डबल हो गई, तो उसकी डिमांड तो बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। यहाँ तो मान लो 10 रुपये का मिल रहा था, ये ₹10, तो शिफ्ट राइट वर्ड हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्राइस और क्वांटिटी की वजह से नहीं हो रही शिफ्ट, इस अदर देन प्राइस एंड प्राइस सेटर्स वेरिएबल्स, इनकम फैक्टर है ये, तो क्वांटिटी डिमांड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। दिस इज फॉर नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं? जो आप नॉर्मली आप लेना नहीं चाहते, मतलब सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स। चावल एक तो होते हैं कोहिनूर चावल और ये सब, और एक होते हैं यार कोहिनूर बासमती अच्छे वाले, और ये होते हैं काम चलाओ जिसमें कंकड़ पत्थर आते रहते हैं, कंकड़, ठीक है। तो अभी आपकी इनकम 100 रुपये थी, अब 50 हो गई, डिमोशन हो गया आपका। तो 10 रुपये वाले आइटम, ये मान लो कोहिनूर वाले 100 रुपये की चीज़ें मिलती हैं, 100 रुपये किलो, ये 100 रुपये, ये इसके आइटम तो 100 ही रहेगा, बट क्योंकि अब आपकी इनकम कम हो गई तो आप इतने महंगी चीज़ें नहीं ले सकते, तो आपकी ऑटोमेटिकली डिमांड विल डिक्रीज। पहले तो इतना कंज्यूम कर रहे थे, क्यों? अब Q0 पे शिफ्ट होना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब आपके इन्फीरियर गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी। इन्फीरियर गुड्स तो ये 100 रुपये का मिल रहा था कोहिनूर बासमती, अब कांचरूप नया मतलब कंकड़ पत्थर वाले आपको 50 रुपये में मिल जाएंगे, तो इसकी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी सेम लेवल ऑफ इनकम पे। ये होता है इनकम इफेक्ट। ऐसे ही नेसेसिटी का और लग्जरीज का भी है, ठीक है ना। नेसेसिटीज तो है कि यार आपको चाहिए ही वो ऑटोमेटिकली, उसका इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, ये समझ गए ना आप क्यों है लेस देन 1।
इनकम इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1, मतलब ये तो चाहिए ही भाई, मतलब इससे प्राइस से चेंज होने से क्वांटिटी पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट, क्योंकि नेसेसिटी है। लग्जरी वगैरह में प्राइस इतना ऊपर नीचे हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो क्वांटिटी में बड़ा चेंज आ जाता है। उनको लगता है कि यार थोड़ा सा चेंज आया है, मतलब प्राइस थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है गोल्ड की, मान लो 1.5 लाख मिल रहा था, अब 1 लाख तक हो गया, तो लोगों की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी, राइट। यहाँ प्राइस नेसेसिटी है, मान लो चावल, ये तो लेना ही है आपको, तो ये 100 रुपये के हो या 50 रुपये के, क्वांटिटी तो आपकी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी ना। ऊपर जैसा एग्जांपल देखा था तो वो ऐसे थोड़ी आपने जीरो ही कर दी उसकी कंजम्पशन, थोड़ा सा डिक्रीज़ किया, बट लेवल ऑफ कंजम्पशन तो सेम रहा ना। क्वालिटी ऑफ चेंज कर दी नया का कर ला के अपनों ने। लग्जरीज़ का तो आपने देख लिया, इलास्टिक होती है डिमांड उसकी, ये वाला एग्जाम्पल। क्रॉस इलास्टिसिटी तो पहले ही बता दिया था मैंने, रिविजन कर लो भाई। सब्स्टिट्यूट रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब एक की जगह दूसरा यूज़ कर सकते हैं, एग्जांपल कॉफ़ी, टी, और दूसरा होता है रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब टी के साथ शुगर, कार के साथ पेट्रोल, ये इसके एग्जांपल है। तो पेट्रोल की कार की इसमें प्राइस में चेंज आएगा ना ऊपर नीचे, तो उसके क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल में चेंज आएगा, प्राइस ऑफ कार इंक्रीज़ हो गई तो लोग कार कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी कम होगी, तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कार, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कार, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर पेट्रोल विल डिक्रीज, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। रिलेटेड गुड्स में है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वन पर्टिकुलर गुड्स, द ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन पर्टिकुलर गुड, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द अदर गुड सिमिलर टू इट विल इंक्रीज। ये इसकी प्राइस बढ़ा ली तो कोई बात नहीं बेटा, हम दूसरा टाइप का गुड यूज़ करने लग जाएंगे तो इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अनरिलेटेड गुड्स का कोई रिलेशन नहीं होता है, इसलिए इसकी ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी है। मतलब टी का देख लो, टी की प्राइस बढ़ेगी तो इससे कार की क्वांटिटी डिमांड में कुछ फ़र्क आएगा? कोई फ़र्क नहीं आएगा, टी और कार में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये होता है अनरिलेटेड गुड्स। अब हम बात करेंगे सप्लाई। What is supply? Law of supply. Other thing remaining constant. Price and quantity supplied are positively related. डिमांड में नेगेटिवली रिलेटेड था इन्वर्सली। यहाँ एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। समझ गए? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि प्राइस बढ़ने से ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने से टोटल रिवेन्यू विल इंक्रीज़, तो सप्लायर को तो अपना टोटल रिवेन्यू तो इंक्रीज़ करना है, राइट। प्राइस बढ़ने से इसकी अगर कॉस्ट भी मैनेजेबल है और प्राइस इंक्रीज़ होने से इसका रिवेन्यू भी बढ़ता है, साथ साथ में प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता है। समझ रहे हो ना? अब उसके बाद में अपने ये तो समझ गए। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ये स्टेटस वेरिएबल्स पीछा नहीं छोड़ेगा अपना, क्योंकि दिस विल मेक द कॉन्सेप्ट वेरी ईजी है। अदर सब चीज़ों को तो हमने साइड दरकिनार कर दिया, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, इन दो का खेल है क्वांटिटी सप्लाई थ्योरी समझने के लिए। अब रीज़न क्यों है ये लॉ ऑफ सप्लाई क्यों ऑपरेट करता है? 3 रीज़न है, प्रॉफिट मोटिव, इंक्रीज मार्जिनल कॉस्ट, एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसा क्यों होता है? प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर। एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, लेबर सप्लाई, पेरिशेबल गुड्स, एग्रीकल्चर सप्लाई शॉर्टन, क्योंकि एग्रीकल्चर सप्लाई भी पेरिशेबल होता है। अब मान लो इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, मतलब अरे यार एक सेकेंड, कचरा हो गया पूरी स्क्रीन पे। पेरिशेबल गुड्स होते हैं कि वो ख़राब हो जाएंगे, तो ये वेट थोड़ी करेंगे यार कि मान लो आगे रेट बढ़ेगी तो बेचेंगे। अभी जो भी रेट बिक रही है उसी पे सारा सप्लाई हो जाएगा, राइट। कि यार ये बाद में ख़राब हो से बढ़िया तो इसको कम में भी बेच दो, कम में भी इतना क्वांटिटी बेच दो, तो ये कम रेट पे तो कम क्वांटिटी बिकनी चाहिए, बट ये कम रेट पे भी सेम क्वांटिटी बेच देते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लॉस ड्यू टू पेरिश। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब इसका फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्वांटिटी सप्लाई है, प्राइस चाहे कितनी हो सप्लाई इतनी रहेगी, ये है एग्रीकल्चर। एकदम से आप सप्लाई बढ़ा थोड़ी दोगे यार, क्वांटिटी ही नहीं होगी इतनी, जितने फसल बोई उतनी तो होगी और उतनी मार्केट में जाएगी सप्लाई होने में, चाहे प्राइस कितनी हो। यहाँ मान लो 100 रुपये किलो भी बिक रहा है, कोई पहले 10 रुपये था 100 रुपये किलो बिक रहा है, तो क्वांटिटी उतनी है भाई अपने पास मार्केट में। और इलास्टिक होता है मैन्युफैक्चरिंग,
मान लो लॉन्ग टर्म में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपनी बूस्ट करके क्वांटिटी को किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं। तब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी ये सप्लाई पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन इलास्टिक है, ये इलास्टिक है सॉरी, ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, ये इलास्टिक है। इक्विलिब्रियम होता है क्वांटिटी अप्लाई क्वांटिटी सप्लाई के बराबर डिमांड सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम लेवल है। अब उन्हें थोड़ा अच्छी तरीके से बनाना चाहिए यार, मैं आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर टाइम ना, दैट्स वाई थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ये देखो ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। ये प्राइस पे ये क्वांटिटी बिकेगी मार्केट में, इतने लोगों पे लोग ले लेंगे, ठीक है। ये क्या है और ये क्या है, ये समझाओ आप मेरे को। मान लो ये है, ये वाला आपका थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। फिर भी जिसको समझना है वो समझ सकता है यार, ये इक्विलिब्रियम लेवल है। मान लो प्राइस ये है, इतने पे सप्लाई तो लोग कर देंगे बट डिमांड नहीं करेगा इतने हाई लेवल पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल तो P0 है। तो ऑटोमेटिकली डिमांड विल डिक्रीज, विल रीच P0। ये वाला क्या चीज़ है, एक्सेस सप्लाई। सप्लाई तो ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस क्या होगी, डिक्रीज। ये लिख रखा है एक्सेस सप्लाई में प्राइस फॉल्स। अब मान लो एक्सेस डिमांड का, मान लो ये डिमांड है, ये सप्लाई है। तो प्राइस विल इंक्रीज टू रीच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सो एक्सेस डिमांड होगी तो ये डिमांड एक्स्ट्रा है ना, ये ऑटोमेटिकली प्राइस को इंक्रीज करके इक्विलिब्रियम लेवल तक लेके आ जाएगी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर, ये तो आपको पता ही होगा। प्राइस सीलिंग लगा देते कि इससे हाईएस्ट नहीं लगा सकते हैं MSP, और प्राइस फ्लोर तो MSP होता है। प्राइस सीलिंग होता है जैसे कि अनियन के उसमें भी लगा देते हैं जब होर्डिंग वगैरह चालू हो जाती है कि इससे ज़्यादा महंगे में लोग बेच नहीं सकते। अब डायनामिक पॉलिसी लिंकेज से भी के लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए यार। इलास्टिसिटी डिटरमाइंस टैक्स इंसिडेंस, सप्लाई रिजिडिटी एक्सप्लेन्स फ्लड इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन, एंड डिमांड शॉक्स एक्सप्लेन बिजनेस साइकिल वॉलेटिलिटी, प्राइस कंट्रोल डिस्टॉर्ट्स मार्केट एफिशिएंसी। ये 40 हाई लेवल एग्जाम ट्रैप वन लाइनर्स है, ये आप पढ़ सकते हो, विच कैन इंक्रीज योर रिटेंशन कैपेबिलिटी एंड विल प्रोवाइड यू a way ahead for solving examination questions.